डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का हिस्सा बना आदित्य ज्योत हॉस्पिटल आई केयर चेन का 100वां अस्पताल। अगले 18 से 24 महीनों में मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में 20 आई केयर फैसिलिटीज लगाने के लिए महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल देश के लीडिंग आई केयर चेन के अगले 3 सालों के दौरान 100 नए अस्पताल और मजबूत डिजिटल मौजूदगी के साथ 500 से अधिक विजन सेंटर्स शुरू करके दुनिया भर में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से विस्तार करने की योजना है। मुंबई पद्मश्री डॉक्टर एस नटराजन द्वारा शुरू किए गए वो मुंबई की लीडिंग आई केयर फैसिलिटीज़ में शुमार आदित्य ज्योत हॉस्पिटल का डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के साथ विलय हो गया है। इसी के साथ ही ये डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल चेन का 100वां अस्पताल बना गए है। डॉक्टर नटराजन मेरे बाजू हैं और इनका जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है आदित्य ज्योत आई हॉस्पिटल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द रेस्ट ऑफ द पीपल हियर। उनके बाजू हैं डॉक्टर अदिल अग्रवाल जो सीईओ है कंपनी के, और उनके बाजू हैं डॉक्टर अश्विन अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं, और यहाँ पर बाजू है यहाँ पर डॉक्टर अत्या अग्रवाल जो एक और डायरेक्टर है अग्रवाल ग्रुप के। हमारा मेन एम क्या है? ये facility is the 7th eye hospital in Maharashtra. This is the 3rd in Bombay. We already have one in Navi Mumbai with Dr. Vandana Jain. We have in Chembur Dr. Neeta Shah और अभी बडाला में है। हमारे पास 2 फैसिलिटी नासिक में है और 2 पुणे में भी है। Our main aim is to invest 300 crores in Mumbai and Maharashtra to create another 20 to 30 eye hospitals in the next 3 years. जब हम बोल रहे हैं अग्रवाल हॉस्पिटल में 100 हॉस्पिटल है, इसका मतलब ये है हमारे पास 14 हॉस्पिटल। We have 14 hospitals in Africa. 86 are in India. In Africa we are in Mozambique, Madagascar, जाम्बिया, घाना, कई जगह है। मॉरिशस में हमारे पास 3 है, मोजाम्बिक में 2 है। Our next big target is we are investing 1000 crores in the Agarwal group to create another 100 plus hospitals in 3 years. Natya Agarwal, we are in the same Madras Medical College, which is one of the oldest in the world and second in India, which is one week later than Calcutta Medical College. And also the oldest eye hospital in Asia is in Madras. So the Madras was the capital of ophthalmology till now, and now Agarwal coming to Bombay and merging with Aditya Jyot. Western India also will command ophthalmology, even though we have so many reputed ophthalmologists in Mumbai, but still I think we have to do the world's best eye care with joining Dr. Vandana Jain, Dr. Shah, Ms. Neeta Shah in Chembur, and 7th hospital in Maharashtra. And as Dr. Amar said, they are investing 300 crore in Maharashtra. And I think one important thing as a retina surgeon I want to highlight is in this hall also, as per the International Diabetic Federation, 58% of people sitting here do not know they have diabetes or not. Why? Because they have not checked their blood sugar. So my recommendation as a past president of All India Ophthalmic Society is every Indian at the age of 30 should start checking postprandial sugar and HbA1c every year. And for example, 30 years you start, 35th year you find you are a diabetic, please check your eyes. That means not only check the vision, check the retina. For checking retina, you have to put drops, dilate and check, not just whatever the computer checkup they call it in the optical shops. I am not against them, but I think you can't check the retina. It is exactly like the film in the camera where you cannot see the film. Same thing is in the retina. Very kind of you. Thank you all for being here. I just wanted to extend a warm welcome to all of you to actually grace this occasion. It's a very special day for us for a couple of reasons. One is obviously for us from the Agarwal Eye Hospital Group. This is our 100th branch. Very, very special day for us, and we have been looking forward to this day. So thank you all for being here and for making it special for us. Second, the bigger exciting thing for us is partnering with a very, very reputed hospital and
and a very reputed doctor, Dr. Natarajan. He has been our teacher for many budding ophthalmologists. Other than that, he's done a lot of great work in the field of retinal surgery, and we obviously have a lot to learn from him as well. So that is an even bigger excitement and opportunity for us. We will be utilizing his help and his expertise and experience to actually provide quality eye care services, not just to the people of Mumbai, but to entire Maharashtra as well, right? Our goal and aspiration is to ensure that the kind of eye care which is provided in his hospital is available to people at their doorstep in tier 2 and tier 3 towns, right? That is our bigger mission, which is why we have partnered with him. So once again, I just want to thank you all for being here. What it did also is it gave a 6-month window where nobody came to the hospital, or not many people came to the hospital. And that delayed a lot of treatment. And we saw a lot of problems after when we started getting patients back. Not just in Tamil Nadu, or across the group, we saw lots of problems that were coming out, whether it be dry eyes, whether it be cataracts, whether it be pediatric children having squint issues. So because if you delay squint treatment, it can become permanent. So वो permanent issues वापस आ रहे थे, and now starting to treat them back all over again. We have actually gone back 2 years by just that 6-month window. So this issue is now becoming more and more serious, but fortunately it also woke people up. So a lot of the early treatments also are coming in now. So, good morning and thanks to all of you to be here. There was a question from me from one of this thing that why are we not entering BMC? So I want to say I come from the south, and my association with Natarajan has been, I think, from late 70s. I know we know each other. So now what I'm doing right now in Chennai is I'm the General Secretary of an organization called Eye Research Center, which was started by my father-in-law 30 years ago. And we are doing at least about nearly 1,000 surgeries totally free of cost under the name of Eye Research Center, where patients do not give even a single pie. We conduct eye camps, bring the patients to the base hospital, we make them stay there. We pick them up in our vehicle, bring them to the base. We have a separate ward where we are keeping them. They are brought to the main hospital and we operate them. We not only do only cataracts, we also do any surgery which they require free of cost. आई हॉस्पिटल अभी ये 100th आई हॉस्पिटल खोल रहे हैं मुंबई में, और हमारा ये मर्जर जो है विद द लीडिंग आई डॉक्टर डॉक्टर नटराजन, आदित्य ज्योत आई हॉस्पिटल जो मेरे बाजू खड़े हैं, मेरे लेफ्ट में हैं डॉक्टर अत्य अग्रवाल और उनके बाजू में यहाँ पर हैं डॉक्टर अश्विन अग्रवाल जो डायरेक्टर्स हैं अग्रवाल ग्रुप के। हमारा मेन टारगेट है मुंबई और महाराष्ट्र में 30 हॉस्पिटल खोलने के लिए 3 साल में। अभी हमारे पास ये 7वां हॉस्पिटल है, 3 वैसे ही मुंबई में है, हमारे पास नवी मुंबई में है, चेंबूर में है, अभी वडाला में है डॉक्टर नटराजन के साथ, और ओवरऑल अग्रवाल ग्रुप में 14 हॉस्पिटल अफ्रीका में है, 86 हॉस्पिटल्स इंडिया में है। अग्रवाल ग्रुप 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा to create 100+ hospitals in the next 3 years. मतलब we will be touching about 200 to 250 hospitals in the next 3 years with an investment of 1000 crore. मेरे बाजू हैं डॉक्टर नटराजन जो लीडिंग ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर हैं, और इनका इतना बड़ा हॉस्पिटल है आदित्य ज्योत, मैं उनसे बोलूँगा अभी थोड़ा बात करने के लिए। नमस्ते। एंड आदित्य ज्योत अभी 31 ईयर्स काम कर रहा है, एंड हमारा आइडिया है अग्रवाल के साथ ज्वाइन करके और सब महाराष्ट्रन्स को सेवा करने के लिए। एंड मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, एंटरटेनमेंट कैपिटल है, एंड सब बैंक्स का हेडक्वार्टर्स है। सो हमारा आइडिया है वर्ल्ड में लाइक आई केयर इंडिया में इतना महत्व बोलने के लिए मद्रास नंबर 1 है। अभी बॉम्बे वेस्टर्न इंडिया में लाइक अग्रवाल के ज्वाइन करके पूरा महाराष्ट्र को सेवा करने के लिए तैयार है। सो बेसिकली हमारा जो सिस्टम जो है यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे हमारे पास 1.5 करोड़ ब्लाइंड है, 1.5 करोड़ का ब्लाइंड है, और इसमें से 55% मोतियाबिंद की वजह से है। अगर आप अपनी आंख देखेंगे, ये जो कैमरा फोटोग्राफ लेते हैं
उसका जो लेंस अगर ख़राब हो जाए तो निकाल करके एक अंदर एक लेंस फिक्स करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे मोतियाबिंद में वैसे ही प्रॉब्लम होता है। इन सब का इलाज हो सकता है, लेकिन कभी कभी अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो, किसी ने चोट लगा दी हो, तो इनमें मुश्किल होता है इलाज करने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने एक नया इलाज किया था, इसको हम कहते हैं ग्लूड IOL। गम के साथ एक लेंस फिक्स कर सकते हैं। डॉक्टर अतिया जो बाजू में हैं वो समझाएंगी ये ग्लूड IOL का मतलब क्या होता है। कई लोग जो है मोतियाबिंद से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद हम पेशेंट्स को क्या करते हैं कि आंख के अंदर ही जहाँ से हमने मोतियाबिंद लगाया है वहाँ पर एक लेंस, आर्टिफिशियल लेंस को चिपका देते हैं जिसका नाम होता है इंट्राओक्यूलर लेंस। कभी किसी कारण, जैसे डॉक्टर अमर ने कहा, किसी चोट की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से जो होता है, आंख पे लेंस बिठाने की आवश्यकता टेबल पे नहीं होती है। उसके लिए जो इंट्राओक्यूलर लेंस बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट को मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं। इसका अल्लाह 2007 में डॉक्टर अग्रवाल ने इसको ईजाद किया था, जिसका नाम हमने ग्लूड इंट्राओक्यूलर लेंस इसलिए रखा है कि वो लेंस जो है उसको बिठाने के लिए आंख के अंदर जो फट गया है मोतियाबिंद और कैप्सूल नहीं होता है, तो बिना कैप्सूल के चिपकाने के लिए हमने जर्मनी से ये ग्लू हमने ख़रीदा और उसको हमने इंट्राओक्यूलर लेंस के जो हैप्टिक्स होते हैं उसको हमने बाहर निकाल के उसको चिपका दिया, जिसकी वजह से ये लेंस जो है अपनी ओरिजिनल जगह पे बैठ जाता है, जिसका नाम होता है ग्लूड इंट्राओक्यूलर लेंस, जो डॉक्टर अमर ने ईजाद किया है। हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशन हम महाराष्ट्र के में भी आकर के बहुत सारा हम इसको ऑपरेशन भी करें, ग्लूड इंट्राओक्यूलर लेंस हम कर सकें। प्रॉब्लम हमारे पास जो चलता है आजकल, आप लोगों को मालूम है, ये कोविड का सिचुएशन है जिसमें ड्राइनेस हो जाती है, आंख ड्राई हो जाती है। आप लोग को देखना चाहिए, आपके खुद आंखों में कभी कभी ड्राइनेस हो जाएगा, बिकॉज आप कंटिन्यूस कैमरा देख रहे हैं। मेरे बाजू में है डॉक्टर अश्विन जो समझाएंगे ये प्रॉब्लम का इलाज कैसे करते हैं और डायग्नोस कैसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अश्विन है। ड्राइनेस एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है। इट्स नॉट अ डेली अफेयर बट लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है। नंबर 1 पहले से है, लेकिन आज जो मशीन्स जो आ गए हैं ड्राइनेस के लिए डायग्नोस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। एंड आइडिया जो है, ये सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वो टियर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी जा सकते हैं और बहुत आसानी से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एंड ड्राइनेस जो है आजकल ऑनलाइन क्लासेस के साथ बच्चों के लिए, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, जो कुछ टेलीमेडिसिन, सब कुछ जो कंप्यूटर पे हो रहा है वो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लिंकिंग। ब्लिंक कम करने से इवेपोरेट हो जाता है टीयर फिल्म। जब इवेपोरेट हो जाता है तो डायग्नोस करना चाहिए ये कितना सीरियस है, ये मीडियम है, मॉडरेट है और सीवियर भी हो सकता है। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये मशीन्स जो हैं फ्रांस से हैं और यूरोप से आए हुए हैं एंड दे हैव बिकम सच अ स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये 50% है और इसके लिए एक पल्स्ड लाइट ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे हम पल्स्ड लाइट यहाँ पे डालते हैं। ये पल्स्ड लाइट सेक्रीशंस क्रिएट करता है, ये प्रोड्यूस करता है सेक्रीशंस एंड टीयर फिल्म वापस आ जाता है। ये 3 सेटिंग्स में होता है, सो इट्स नॉट 1 सिटिंग, 3 सिटिंग्स में होता है। एंड ऐसे वी विल स्टार्ट कीप ऑन डेवलपिंग मोर एंड मोर। द आइडिया जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आई केयर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अग्रवाल ब्रिंग कर सकता है, वो अभी महाराष्ट्र में भी आएगा। एंड एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर नटराजन के साथ होगा एंड दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड विच ये मर्जर हो रहा है और ये कमिंग टुगेदर।